Hello everyone, today I will discuss about the liver cirrhosis. If we talk about the liver cirrhosis, first of all, definition. This is irreversible, irreversible diffuse fibrosis in liver. The term is irreversible. This is irreversible diffuse fibrosis in liver, along with regenerating nodules, which is formed by liver self. The term is irreversible diffuse fibrosis in the liver, along with regenerating nodules within liver, which is formed by the liver cells. This nodule generation indicates that first thing is injury to the hepatocyte. Okay, that means their normal architecture is missing. What happened in this? Fibrosis of the liver cell. Okay, second thing, increased sinusoidal pressure, and third one is increased hydrostatic pressure. This nodule formation indicates that injury to the hepatocytes. The normal architecture is missing, means fibrosis occur of the hepatocytes, increased sinusoidal pressure and increased hydrostatic pressure. Okay, now if we talk about the causes of liver cirrhosis, the most common cause is alcoholic liver cirrhosis. This is the most common cause. This liver cirrhosis may be many types. The most common is alcoholic liver cirrhosis, which is caused by the alcohol, chronic alcoholics. Okay, second is hepatitis. This hepatitis may be hepatitis B or hepatitis C. Okay, third cause is autoimmune disease. Autoimmune disease, that is SLE, is the cause. Second cause is primary biliary cirrhosis. Other one is autoimmune hepatitis. Next cause, metabolic disease. In this, Wilson disease. Alpha 1 antitrypsin deficiency.
अदर वन इज hematochromatosis. The most common cause is alcohol. Second one is hepatitis. This hepatitis may be of hepatitis B or hepatitis C. Third cause is autoimmune diseases. In this, SLE is the cause. Okay, autoimmune hepatitis. In metabolic disorder, the common cause is Wilson diseases, alpha-1 antitrypsin deficiency, and hemochromatosis. तो ये रहा आपके कॉमन कॉज। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज में भी और सारे कॉज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली ये कराते हैं, और भी कॉज हैं जो कि हेपेटाइटिस को करा सकते हैं। फीचर क्या क्या हो सकते हैं? फीचर ऑफ द क्रोनिक लीवर डिजीज, if we talk about the feature, the most common is jaundice, pallor, third one is cyanosis। और क्या आ सकता है साइनोसिस के अलावा? टर्म इज स्पाइडर नर्वाई, स्पाइडर नर्वाई। मोस्ट कॉमन फीचर इज फ्लैपिंग ट्रेमर, फ्लैपिंग ट्रेमर। फ्लैपिंग ट्रेमर होता कैसे है? सपोज करो कि ये नॉर्मल हैंड है, ठीक है। नॉर्मल हैंड में फ्लैपिंग ट्रेमर जो होगा इस टाइप का, ऐसे अगर हाथ को ऐसे उठा दिया तो कुछ टाइप ऐसे 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 वो हाथ फिर उसका नीचे की तरफ झुकने लगेगा। दिस इज कॉल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर। फ्लैप कर रहा है, फ्लैप ऐसे, तो ये हो गया फ्लैपिंग ट्रेमर। उसके बाद असाइटिस, उसके बाद और क्या हो सकता है? स्प्लीनोमेगैली, और क्या हो सकता है? गायनेकोमेजिया, और क्या हो सकता है इसमें? और हो सकता है आपका कैप्यूट मेडुसी, टेस्टिकुलर एट्रोफी, और क्या हो सकता है? एलोप्लेसिया। तो ये सारे इसके फीचर्स हो सकते हैं। जनरली जो पेशेंट आपके पास आएगा उसमें आप देखते हो जॉन्डिस देखते हो, साइनोसिस में अपीयर हो जाती है, फ्लैपिंग ट्रेमर जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। असाइटिस होना है, ये होना है, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो ये सारे कॉज जो हैं, फीचर जो हैं आपको मिलेंगे लीवर सिरोसिस के केस में। अच्छा, अगर डायग्नोसिस करना नहीं हमें तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस के लिए आप करते हो लीवर बायोप्सी। ये जो लीवर बायोप्सी है ये क्या होती है? कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल लीवर सिरोसिस। For all liver cirrhosis, this is most accurate test, confirmatory test and most accurate test। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है बायोप्सी का? पीएससी। पीएससी क्या है? प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। ये क्या होती है? प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस क्या होती है? ये होती है आपकी क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज जो क्या करती है? स्लोली
डैमेज टू द, किसको, बाइल डक्ट को। ठीक है, तो पीएससी के केस में आप क्या करेंगे कि बायोप्सी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब बात करते हैं, फीचर की बात कर लिया, डायग्नोसिस की बात कर लिया, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, अगर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले अगर बात करो तो पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या कराता है, ये मोस्ट कॉमन कंपोनेंट होता है ऑफ असाइटिस का। दिस में लीड टू कॉज स्प्लीनोमेगाली, थर्ड वन इज अपर जीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड ड्यू टू द इसोफेजियल वेरिसेस। इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा अलग से। एंड फोर्थ वन इज गैस्ट्रोपैथी, गैस्ट्रोपैथी। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या कराता है, असाइटिस कराएगा, मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कह सकते हो, स्प्लीनोमेगैली कराएगा, ठीक है, अपर जीआई ब्लीड करा देगा और गैस्ट्रोपैथी कराएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली की, तो स्प्लीनोमेगैली जो होती है लीवर सिरोसिस के केस में मैसिव होती है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली इज फाउंड। मैसिव स्प्लीनोमेगैली का मतलब क्या समझते हैं, मैसिव स्प्लीनोमेगैली का मतलब ये होता है कि जो मतलब स्प्लीन इतनी बढ़ जाती है कि अगर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, तो आप स्प्लीन जो है वो आपको अम्बलाइकस के पास तक फील होती है। ठीक है, मतलब इतनी बढ़ जाती है, मतलब स्प्लीन इज लार्ज इन केस ऑफ द liver cirrhosis. On the clinical examination we can find it beside the umbilicus. Okay, this hypersplenism leads to pancytopenia, इसीलिए हमेशा जो है लीवर सिरोसिस के केस में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो प्लेटलेट काउंट होती है हमेशा डाउन होती है। ठीक है, हमेशा कम होती है, 60,000 70,000 ऐसे ही चलती रहती है। एक चीज़ यहाँ पे, मतलब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं करते, प्लेटलेट हमेशा उसकी डाउन रहेगी बट हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट जो है 20,000 से कम हो जाए, 20,000 से कम हो जाए, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। जैसे प्लेटलेट डाउन होती है पेशेंट की, जनरली क्या होता है कि जैसे ही कोई उन्हें इन्फेक्शन हुआ, कोई ऐसी मतलब बात हुई, तो उन्हें क्या होता है कि रैसेस पड़ने लगते हैं शरीर पे ड्यू टू द लो प्लेटलेट काउंट। ये अलग से डिस्कस करने का टॉपिक है। तो नॉर्मली यहाँ पे बस इतना बात करूँगा कि उन्हें जो होते हैं पिटाइकियल हैमरेज जो होती हैं वो होने लगती है और पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते जैसे दाने पड़ने लगते हैं। तो ये अलग से टॉपिक है, मतलब हाइपरस्प्लेनिज्म हुआ तो क्या हुआ, पैनसाइटोपिनिया यहाँ पे हो गई। वाइवा में पूछते हैं कि लीवर सिरोसिस के अलावा और भी कॉज क्या क्या हैं स्प्लीनोमेगैली के। तो अदर कॉज जो हैं, अदर कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगैली, अदर कॉज में सबसे पहला तो आ जाता है आपका क्रोनिक मलेरिया, क्रोनिक मलेरिया। सेकेंड वन इज क्रोनिक कालाजार। ठीक है, तीसरा आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में भी दिखने को मिलता है स्प्लीनोमेगैली, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज।
और कब मिलेगा? आपको मिलेगा जैसे CML के केस में, ठीक है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे आपका CML हो गया, ठीक है, PCB हो गया, इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये कॉजेज हो गए किसके? स्प्लीनोमेगैली के। मोस्ट कॉमन आपका क्रोनिक मलेरिया, कालाजार, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, CML, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको हमेशा स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। ये हमेशा वाइवा में पूछते हैं, कॉज ऑफ द स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। अब तो ये रही सारी बातें। अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा, छोटा सा है, असाइटिस का। तो आपने फीचर में पढ़ा असाइटिस, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो असाइटिस होता क्या है? असाइटिस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है? पेरिटोनियम कैविटी के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है ये दो तरह से हो सकता है। या तो पेरिटोनियम कैविटी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या तो वो ज़्यादा है या तो वो कम है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा को शिफ्टिंग डलनेस, जैसे वो क्या होगा कि हमेशा मूव करता रहेगा, ठीक है। पूरा जो पानी है, ये फ्लूइड है, ये हमेशा मूव करता रहेगा। तो अगर मैसिव एक्यूमुलेशन है तो क्या होती है कि शिफ्टिंग डलनेस हो जाती है। अगर बहुत थोड़ा अमाउंट में अभी शुरुआत हो रही किसी की, ठीक है, तो उस टाइम में अगर क्या है कि मिनिमल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, USG करके पता कर लेते हैं कि भाई एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रही दो कंडीशन एक्यूमुलेशन की। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है एक्यूमुलेशन की, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ असाइटिस डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये क्या होता है, बॉडी में रिड्यूस करता है। रिड्यूस क्यों करता है? बिकॉज इट्स फॉर्मेशन ऑकर इन लिवर। अब लीवर सेल डैमेज है, ठीक है, तो क्या हुआ, एल्बुमिन का फॉर्मेशन ये हो गया, वो कम हो गया, जिसके नाते क्या हुआ कि रिड्यूस कौन सा प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। जब ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, कॉजेज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये एक दो जैसे कोई ब्लड वेसल्स है तो इनको ये दोनों प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक जैसे ही क्या हुआ कि कम हुआ तो दूसरा जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ कि जो फ्लूइड है वो क्या होने लगा, लीक होने लगा, लीड्स टू फ्लूइड लीक। और ये पहुंच गया कहाँ पे, पेरिटोनियम में, और यहाँ पे जाकर के ये असाइटिस करा दिया, ठीक। तो क्या होता है, सबसे पहले एल्बुमिन का जो कंसंट्रेशन होता है, एल्बुमिन जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, बॉडी में रिड्यूस करता है, क्योंकि फॉर्मेशन एल्बुमिन का कहाँ हो रहा है, लीवर सेल्स में हो रहा है। तो लीवर सेल
लीवर सेल डैमेज हो रही हैं तो एल्बुमिन का फॉर्मेशन कम होगा। जब एल्बुमिन फॉर्मेशन कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, और जब ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस करा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है क्या किया, इंक्रीज कर गया। और जिसके नाते क्या हुआ कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जो किसी ब्लड वेसल्स के अंदर या किसी भी, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो अगर कोई पाइप है तो पाइप के अंदर अगर कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो उस वाटर के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, या फिर जो भी फ्लूइड इसमें मूव कर रहा है उसके उससे जो प्रेशर लग रहा है वॉल पे वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहा है। तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हुआ कि ज़्यादा हो गया, मतलब इसके अंदर वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हुआ। जब प्रेशर, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये फट जाएगी मेम्ब्रेन जो है, और फिर वो पानी जो है जितने भी सब बाहर निकलने लगेंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे पेरिटोनियम में। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो फिर क्या हुआ कि फ्लूइड जो है लीक करने लगा और फिर पेरिटोनियम में पहुँच करके ओसाइटिस करा दिया। ठीक, एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ क्या है कि इंक्रीज अल्डोस्ट्रॉन लेवल। एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ गया तो वो ये क्या कराता है, लीड्स टू सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। क्या करा दिया, सेकेंडरी हाइड्रो एल्डोस्टेरोनिज्म। तो पहला क्या हुआ कि एल्बुमिन कम होता है और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, ये तो रहा कैसे डेवलप करती है एसाइटिस। अब एक टर्म आता है पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस क्या होता है, एस्पिरेट करते हैं किसको, फ्लूइड को। जो असाइटिस फ्लूइड है, असाइटिक फ्लूइड है, उसको क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, एस्पिरेट द फ्लूइड टू चेक हाउ मच cells and how much protein are there। इसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, पैरासिंथेसिस। चेक करने के लिए कि कितना प्रोटीन है उसमें और कितनी सेल है, न्यूट्रोफिल बेसोफिल जो भी है उसमें, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरासिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर इसको इसके इसके लिए क्या करते हैं कि टैप करते हैं, टैपिंग द साइटिक फ्लूइड। जब पहली बार पेशेंट आपके पास आएगा एसाइटिस का, तुरंत हमको क्या क्या करेंगे कि एसाइटिक फ्लूइड उससे निकालेंगे और उसको चेक करेंगे। जब भी पेशेंट आएगा वो उसको जो सिम्टम होगा क्या होगा, फीवर होगा और क्या होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। आपको क्या करना है कि एसाइटिक फ्लूइड लेना है, उसको चेक करना है कि कौन कौन सी सेल्स हैं, इसमें क्या क्या है और कितने अमाउंट में प्रोटीन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पैरासिंथेसिस। अच्छा, अब आज बात करते हैं, हमने डेफिनेशन की बात कर ली, क्लिनिकल फीचर की बात कर ली, हमने डायग्नोसिस की बात कर ली। ठीक है, हमने असाइटिस डेवलप होने के पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली। ठीक है, अब लास्ट में आता है, हाँ, फिर यहाँ पे हमने पैरासिंथेसिस की भी बात करी। अब बात करते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट में हमें उसे दो तीन चीज़ें मना करनी होती हैं। सबसे पहले लो सॉल्ट, बोलना है कि भैया आपको नमक जो है वो कम खाना है। ठीक है, दूसरा वाटर जो है आपको लो लेना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए साल्ट को कम करना है, उसको मेंटेन करने के लिए फ्लूइड को कम करेंगे तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, जिसके नाते एसाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसके लिए उससे बोलना है कि भाई वाटर भी आपको कम लेना है, वेट मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए डेली वेट चेकिंग। ठीक है, और क्या करना है, अब उसको जो है डायूरेसिस देते हैं।
मेन असाइटिस को कम करने के लिए डायलिसिस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग आती है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में? एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग है? स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, इसको देते हैं। और कौन सी हो सकती है? प्लीरिनोन, प्लीरिनोन, स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं कि मैसिव असाइटिस है तो क्या करते हैं? टैप करते हैं। इन मैसिव असाइटिस जो असाइटिक फ्लूइड होती है, असाइटिक फ्लूइड होती है, को क्या करते हैं? टैप आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं सिरिंज से, जिसमें कितना 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर तक ही टैप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या बोलना है कि हमें भैया साल्ट जो है आप कम लीजिए, वाटर को कम लीजिए। ठीक है, आप वेट कम करिए। अगर वेट आपका ज़्यादा है तो वेट आप नॉर्मल में ले आइए। ठीक है, डायलिसिस देते हैं। अगर देखते हैं कि असाइटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट चलाते हैं, स्पाइरोलेक्टोन चलाते हैं। अगर इससे कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है। और अगर देखते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपके पास पहुंच रहा है कि ऑलरेडी बहुत मैसिव कंडीशन में है, तो क्या करते हैं कि हम 1 से 1.5 लीटर पर डे के रेट से हम क्या करते हैं कि टैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर मान लो कि हमने टैप नहीं किया और एसाइटिस जो है वो मतलब एसाइटिक फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियम में भरा ही भरा है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसको भी डिस्कस कर लो। कि भाई मान लो पेशेंट जो है उसको फ्लूइड भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, और वो आपके पास नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम क्या होगी? तो उन्हें होगी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। इसमें उन्हें क्या फील होगा? उन्हें सबसे पहले फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके बाद रिबाउंड इन्फेक्शन होगा, सॉरी रिबाउंड टेंडरनेस होगा। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये किसका होता है? एसाइटिक फ्लूइड का होता है। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड का होता है विदाउट एनी नोन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम एसाइटिक फ्लूइड की अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये जो है हमेशा आपकी निगेटिव आती है। हमेशा कभी भी आप एसाइटिक फ्लूइड की ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो वो हमेशा निगेटिव आएगी। ठीक है, अगर इसको कल्चर करते हो, कल्चर सेंसिटिविटी जो होगी मे बी या मे नॉट बी पॉजिटिव। ओके, जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो कौन कौन से होते हैं? ई कोलाई हो सकता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे कि अगर एसाइटिक फ्लूइड, इफ एसाइटिक फ्लूइड हैव न्यूट्रोफिल more than 250 ml, 250 per ml, it indicate hence highly selective bacterial peritonitis।
इस कंडीशन में अगर उसे पेरिटोनाइटिस हो गया है, कहने का मतलब है कि 250 से ज़्यादा, मोर देन 250 पर ml न्यूट्रोफिल अगर मिल रहे हैं, तो उसको जो है बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या है, हाईली मैलिग्नेंट हो जाती है। सॉरी, मैलिग्नेंट वर्ड यहाँ नहीं यूज करना है, हाईली इन्फेक्शियस पर्सन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट आपके पास आता है तो ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे कि उसको 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, सेफिक्साइन, सीफेक्टोजाइम, ठीक है, ये सही ड्रग आती हैं। अगर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, प्रोफाइलैक्सिस में क्या दोगे उसको, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन दे दो, और सेफ्ट्रॉन। ये जो ड्रग है वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका, अगर कोई पेशेंट आता है एसाइटिक का और वो जो है हाईली इन्फेक्शियस कंडीशन में है, तो उसे ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दोगे, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या दोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दोगे, नॉरफ्लॉक्सासिन दे सकते हो, साथ में सेप्ट्रॉन दे सकते हो। ये जो ड्रग है ये लाइफ लॉन्ग उसे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका पूरा लिवर सिरोसिस। अभी आगे कुछ पार्ट बचा हुआ है इसको, इसोफेजियल वेरिसेस और भी चीज़ें हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, अभी फ़िलहाल नहीं। थैंक यू।